In the last class, we briefed about what is social security, how does social security function in the organization and otherwise outside the environment. Social security क्यों दी जाती है, उसका ऑब्जेक्टिव्स आज हम लोग डील करेंगे. तो थोड़ा सा जितना लास्ट क्लास में आपने पढ़ा, जो कॉन्सेप्ट हुआ, उसका कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए and then you proceed towards the other thing. लिखिए social security. Shut the door. Social security. ILO defines लिख चुके हैं. ये वाला हो चुका है. डेफिनेशन वगैरह लिख चुके हैं आप लोग ना? यू राइट, वही तो है. अच्छा ओके, आई विल रिपीट इट. जहां से छूटा है जिसका वो लिख लेना, ठीक है? 2 मिनट लगेगा इसमें. ILO defines, देखो, ILO defines social security as the security that society furnishes through. जो नहीं लिखा है मैम तो ऐसे पढ़िएगा तो कैसे लिख पाएगा? लास्ट क्लास में तो सिर्फ एक्सप्लेन किए थे ना, उसके एक क्लास पहले. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी. Different objectives regarding objectives of social security. ठीक है, अब लिखिए different objectives, अलग अलग objectives, different objectives regarding implementation इसको implement करने के लिए different objectives regarding implementation and continuation उसको continue करने के लिए and continuation of social security by the government in all the countries are by the government in all the countries are बुलेट पॉइंट्स देके लिखते जाइएगा फटाफट, ठीक है? राइट डाउन फर्स्ट. देखो रिपीट कर देते हैं. Different objectives regarding implementation and continuation of social security by the government in all the countries of the world are. Point number 1, to continue income of the employee. To continue income of the employee. Second, to support and livelihood of the employee. To support and livelihood of the employee. Livelihood, आजीविका, livelihood. To support and livelihood of the employee. Next point, to support in livelihood of the employee. Yeah, next point, देखो, to prevent social problems, in case of contingencies of life. To prevent social problems in case of, बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है. To prevent social problems
prevent social problems in case of contingencies of life. हाँ, contingencies of life. आप लिख लीजिए, फिर इसको एक्सप्लेन कर देंगे अब. Contingencies of life. ब्रैकेट में लिखो robbery, human trafficking, etc. Robbery, human trafficking, etc. Next point. Full utilization of फिर रिपीट कर दीजिएगा. full utilization of next point. Full utilization of working efficiency. Full utilization of working efficiency on hazardous work. On hazardous work. On hazardous work. Hazardous work. जो डेंजरस काम होता है वो. Next. To retain workers at work. To retain, रोक के रखने के लिए. To retain workers at work. Next. To improve morale. To improve morale and job satisfaction. To improve morale and job satisfaction, which is important for industrial development. Which is important for industrial development. Done. Next, one important objective of social security. One important objective of social security is to improve the supply of laborers. One important objective of social security is to improve the supply of laborers on unhygienic nature of work. 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 In industries, there are many such there are many such work. In industries, there are many such work where attraction of workers is possible due to social security. Next, to minimize absenteeism
To minimize absenteeism, स्पेलिंग देख के लिखना, बोर्ड पे लिखे। To minimize absenteeism and labor turnover, labor turnover, कौन सा पॉइंट? पूरा पहला पॉइंट देखो, बस मिलाना ही है ना, छोटा तो नहीं है। फर्स्ट पॉइंट, टू कंटिन्यू इनकम ऑफ द एम्प्लॉय। सेकंड, टू सपोर्ट, टू मिनिमाइज absenteeism and labor turnover। ठीक है, अब देखो ये सारा ऑब्जेक्टिव्स है सोशल सिक्योरिटी का। सोशल सिक्योरिटी क्यों दी जाती है, ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है? ऑब्जेक्टिव और स्कोप में डिफरेंस समझ में आता है आपको? ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव और स्कोप में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको फर्स्ट ईयर में भी लिखना होता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस एंड स्कोप ऑफ दिस। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है पर्पस, किस पर्पस से वो दिया जा रहा है, और स्कोप का मतलब होता है कि उसका दायरा कहाँ तक है, क्षेत्र कहाँ तक है। ट्रू, मतलब वो कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट हो सकता है। ऑब्जेक्टिव का पहला पॉइंट क्या है बताइए, क्या लिखे? टू कंटिन्यू इनकम ऑफ द एम्प्लॉय। इसका क्या मतलब हुआ? सोशल सिक्योरिटी, हाँ, मतलब अगर वो बीमार रहा या कोई वुमेन मैटरनिटी लीव लेती है तो ऐसा नहीं है कि अनपेड लीव्स दे दिया जाए उसको कि ठीक है आप जितना एक साल लीव ले लेती हैं तो आप एक साल लीव ले लीजिए और पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि वैसे कंडीशन में वो कहीं और भी ज्वाइन करने के काबिल नहीं होते। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि सोशल सिक्योरिटी में क्या होता है कि वर्किंग एफिशिएंसी घट जाती है, तो घट जाने की वजह से वो कहीं और नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, वो लीव पे हैं, दे आर नॉट प्रोडक्टिव दैट मच। तो उस केस में उनकी इनकम अगर कंटिन्यूड रहेगी, आप सोच सकते हैं कि घर में अगर पापा बीमार हो जाते हैं, अगर उनको 2 महीने कभी कुछ वैसी बात हो जाए, जो इतने लंबे सर्विस पीरियड में कभी ना कभी तो होता ही है कि कोई बीमार हो जाए, 30 साल 35 साल लोग सर्विस करते हैं, और उस समय अगर वो घर पे हैं, सिर्फ छुट्टी मिले और इनकम ना मिले, यानी सैलरी ना मिले, तो घर की स्थिति खराब होगी ना। तो इसीलिए सोशल सिक्योरिटी का पर्पस ये होता है कि अगर आप किसी तरीके से किसी लाइफ की कंटिजेंसी को फेस कर रहे हैं तो स्टिल योर इनकम विल बी कंटिन्यूड। एंड सेकंड पॉइंट इज लाइवलीहुड में सपोर्ट करना, व्हिच प्रीटी मच मींस द सेम थिंग। लाइवलीहुड का मतलब वही है। थर्ड पॉइंट क्या है? फुल यूटिलाइजेशन। सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में आपको समझाया गया था उस दिन। इन केस ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा सिर्फ एक टूल नहीं है इकोनॉमी का, माने एक इंडिकेटर नहीं है। हम लोग गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट से इंडियन इकोनॉमी के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो इंडियन इकोनॉमी का जब प्रॉब्लम्स काउंट होता है तो ये दो मेन प्रॉब्लम्स को हमेशा काउंट किया जाता है, एक पोवर्टी और एक अनएम्प्लॉयमेंट। बोथ ऑफ दीस थिंग्स, पोवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, सिर्फ एक डेटा नहीं है हमारी इकोनॉमी के, और ये सिर्फ इकोनॉमी को यानी इकोनॉमिक एस्पेक्ट से आप नहीं पढ़ेंगे, इसका सोशल इम्प्लीकेशन भी देखिए कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट रही बहुत ज्यादा, खासकर नीचे वर्ग की, तो क्या हो सकता है उससे? सोसाइटी धीरे धीरे खराब होगी। जो जिस कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह बहुत ज्यादा होता है उसमें क्या होगा, जो नीचे तबके के लोग हैं वो चोरी करना शुरू करेंगे, रिक्शा वाले, ठेला वाले। इनइक्वालिटी तो आएगा ही आएगा। अगर हम सिर्फ सोशल प्रॉब्लम्स की बात करें तो करेंगे पेट भरने के लिए,
आप सोच सकते हैं कि जो माइग्रेंट वर्कर्स अपने बच्चे को सर पे लेकर के महाराष्ट्र और ऐसी जगह से कोविड में सिर्फ 7 दिन फैक्ट्री बंद होने की वजह से 1000 किलोमीटर चल सकते हैं पैदल, उनकी कंडीशन आप समझ सकते हैं कि सिर्फ 7 दिन का एम्प्लॉयमेंट गया और ये दुर्दशा हो गई कि उनको कैंप में खाना दिया जाना पड़ गया, और वो भी इरेगुलर था, इनएडिक्वेट था, और वो लोग भाग रहे थे कि कम से कम गांव में भूखे तो नहीं मरेंगे, बाहर तो भूखे मर जाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट गया, कोई पैसा फ्री में देता है? सरकार का कैंप लगा, लेकिन कितना खाना मिला, क्या मिला, वो तो वही जानते हैं। रहना भी फ्री में नहीं है, चौल में भी जहाँ कहीं भी रहता होगा तो कुछ तो पैसा देता होगा। बिजली का बिल, पानी का बिल, सब जगह बिल्कुल, ठीक है। तो जो जिस लेवल का रहता है वो उसी लेवल से पैसा पेमेंट करता है और उसको उसी की जरूरत होती है, ठीक है। अब आप सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में समझ सकते हैं कि चोरी बढ़ेगी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी बढ़ेगा, a lot of women will be tricked into the other social problems like prostitution, ये भी बढ़ेगा समाज में। इसीलिए सोशल सिक्योरिटी उन लोगों को दिया जाना बहुत जरूरी होता है ताकि समाज में बैलेंस भी बना रहे। समझ में आई बात? सोशल सिक्योरिटी में आगे पढ़ाएंगे कि आप तो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से भी पढ़ रहे हैं ना कि हम इस एक्ट में कवर्ड हैं क्योंकि आप नौकरी पेशा लोग होने वाले हैं, पर असिस्टेंस भी होता है, वो भी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फुल यूटिलाइजेशन ऑफ वर्किंग एफिशिएंसी और हजार्डस वर्क। अच्छा, हजार्ड मतलब क्या होता है, क्या समझे आप हजार्डस के बारे में? डेंजरस वर्क। वो आए दिन उस दिन भी बताए थे कि माइंस वगैरह में आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है। हाँ? होता है, ये गिर जाता है कई बार, केस हुआ है बहुत सारा, तुम जहाँ देखोगे तुमको समझ में आएगा कि यहाँ जान का खतरा है। एनएचपीसी वगैरह में सिर्फ वर्कर्स क्यों, एनएचपीसी वगैरह में जो इंजीनियर्स काम करते हैं, पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम होता है, वो बहुत पहाड़ वहां के एरिया में, वहां जो नदी होती है जनरली उसमें बांध वगैरह बनाने का काम होता है, तो वो भी तो डेंजर पे ही काम कर रहे हैं। अब तुम ये सोच के देखो अपने हिसाब से कि तुम नौकरी करने जा रहे हो रोज, तुम्हारे पीछे तुम्हारा परिवार है, यू आर द ओनली अर्निंग मेंबर, ठीक है, और तुम जिस नौकरी को करने जा रहे हो उस नौकरी में हर दिन का जान का खतरा है, तो क्या तुम्हारे दिमाग में एक अलग लेवल का डिससैटिस्फैक्शन या परेशानी या एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी नहीं रहेगी कि अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा, मेरा फैमिली तो रोड पे आ जाएगा? बिल्कुल, ये तो बेसिक ह्यूमन नेचर है कि आपकी सिक्योरिटी उसी सेंस में दी जाती है। वैसे में अगर हजार्ड पे या जो लोग डिफेंस में भी होते हैं, उनकी कश्मीर पोस्टिंग होती है या कहीं वैसे जगह पे पोस्टिंग होती है जहाँ पर की जान का कश्मीर, तो जिसकी पोस्टिंग हुई वो बच के आ जाए, बस उसके घर वाले यही बनाते हैं, राइट? क्या ग्रेनाइट नहीं, ग्रेनेड कहते हैं उसको। ग्रेनाइट पता है क्या होता है? किचन में जो टाइल्स लगता है उसको ग्रेनाइट कहते हैं, ठीक है। तो कश्मीर या कई वैसे नक्सलाइट प्रोन एरिया, हाँ बिल्कुल नक्सलाइट प्रोन है, ये सब जगह पे, सुकमा, ये सब जगह पे जहाँ पोस्टिंग होती है हर वक्त जान का खतरा होता है। और वैसे जगह पे अगर सिक्योरिटी नहीं दी जाए, सोशल सिक्योरिटी, आप देखे होंगे जनरली जो जवान वगैरह होते हैं वो लोग बहुत जनरली, आई एम टॉकिंग जनरली, वो काफी गांव से होते हैं, गांव के लोग होते हैं, उनके पीछे 7-8 लोग खाने पाले होते हैं। अगर वो कितना यंग लोग मर जाते हैं, 23 साल के, 24 साल के, ठीक है, उन लोगों का अगर डेथ हो जाए तो उसके पीछे पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है ना, आप समझ सकते हैं हालत। वैसे में अगर कॉम्पेंसेशन ना मिले कि अगर आपकी ड्यूटी पे डेथ हो जाए, वो भी तो एक फैक्टर है ना कि लोग क्यों जाते हैं वैसी जगह पे, ठीक है, पैसे के लिए नहीं। वी शुड नॉट टॉक अबाउट डिफेंस लाइक दैट। नेक्स्ट इज, तो वैसे काम में अगर सिक्योरिटी रहती है तो एटलीस्ट ये चीज होती है
कि आपके फैमिली का थोड़ा ये रहता है दिमाग में कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चों को कुछ नहीं होगा, मेरा फैमिली रोड पे नहीं आएगा। आप समझ सकते हैं लमसम क्या हो सकता है ये। नेक्स्ट पॉइंट इज टू रिटेन वर्कर्स एट वर्क। ठीक है, टू रिटेन वर्कर्स एट वर्क, इसका क्या मतलब हुआ? क्यों रोक के रखने के लिए? कैसे रोके रहेगा? एग्रीमेंट नहीं होता है। देखो, सोशल सिक्योरिटी देगा तभी रुकेगा, ऐसी बात नहीं होती। सोशल सिक्योरिटी जैसे कि ग्रेचुटी होता है ना, ये बताएंगे आगे, ये आंसर हम तुम लोग से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। नहीं नहीं, जैसे ग्रेचुटी होती है, ये एक सोशल सिक्योरिटी का लेजिस्लेशन है, ठीक है, मानी सोशल सिक्योरिटी के एक्ट में ये आता है। इसमें जब आप 5 साल की कंटिन्यूअस सर्विस कर चुके होते हैं, 5 years of continuous service, तो the employer is obliged to give you gratuity, तब वो एम्प्लॉयर आपको ग्रेचुटी देगा, ठीक है, आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन 5 साल कंटिन्यूअस, ऐसा नहीं कि तुम 4 साल वहां काम करे और फिर 1 साल छोड़ के कहीं चले गए और फिर ज्वाइन करके 5 गिनवा रहे हो। 5 years of continuous service, तब वो देता है। तो अच्छा, मान लो कि 5 साल के बाद तुमने छोड़ दिया, लेकिन अगर 10 साल काम कर गए तो ज्यादा पैसा मिलता ना तुमको। पीएफ का पैसा अगर तुम कटवाओगे, मान लो कि पीएफ में 3 साल काम किया, फिर सोचा कि अब अपना बिजनेस करेंगे, राइट, छोटा कुछ करेंगे, मान लो उस लेवल के बारे में समझो। 3 साल काम किए तो पीएफ का पैसा तुम्हारा भी कटा, एम्प्लॉयर का भी कटा, तो वो 12% तो काफी पैसा होता है ना, जो एम्प्लॉयर दे रहा है तुम्हारे लिए, राइट। द नेक्स्ट थिंग, अगर ये 6 साल होते तो तुमको पैसा ज्यादा मिलता ना। तो इसीलिए टू रिटेन वर्कर्स एट वर्क, social security benefits depends upon the length of service. आपके सर्विस की लेंथ है, जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, इसीलिए इट हेल्प्स इन रिटेनिंग वर्कर्स एट वर्क। ओके, नेक्स्ट, ग्रेचुटी पता है? तो ये पढ़ाएंगे अलग से, लेकिन ग्रेचुटी क्या होता है कि 5 साल जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में लगातार काम कर लेते हो, तो आपको जस्ट रिवॉर्ड करने के लिए ये दिया जाता है ग्रेचुटी, ठीक है। ये सब शुरू हुआ था, निकाल नहीं सकते, बीच में छोड़ तो नहीं मिलेगा। हाँ, ये इसका देखो, सब चीज का हम बता नहीं सकते ना, हर चीज को समझने के लिए बैकग्राउंड जानना जरूरी होता है। पहले ग्रेचुटी में सिर्फ रिवॉर्ड के तौर पे एम्प्लॉइज दिया जाता था कि भाई तुम हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम किए, बहुत लंबे समय तक काम किए, इसलिए हम खुश होकर के तुमको पैसा दे रहे हैं कि तुम बहुत लंबा टेक करें हमारे काम करें। धीरे 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 फिर इसका फॉर्म चेंज हो गया, एज डिफर्ड वेजेस भी आते हैं, यानी मजदूर को लगा कि हमारा बकाया है वो आप दीजिए। फिर ग्रेजुअली इसको अधिकार की तरह वर्कर्स मांगने लगे कि नहीं, आप हमको दीजिए ही दीजिए, तब ये जाकर के लॉ बना। बोनस, ग्रेचुटी, ये सब वर्कर्स की लड़ाई का नतीजा है, अपने अधिकार की लड़ाई। नेक्स्ट पॉइंट, टू इम्प्रूव मोरल एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। अच्छा, ये देखो, तुम लोगों का कोई परसेप्शन होगा इस कॉलेज के बारे में। अगर अपने आप, यू आर स्टूडेंट, ये कॉलेज है, आप यहाँ पढ़ने आते हैं, यहाँ की फैकल्टी के बारे में, यहाँ कॉलेज के बारे में, यहाँ के नियम कानून के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आप कुछ सोचते होंगे, राइट, आप कुछ सोचते होंगे। Coming back, we said that there is some, नहीं, that is the moral is different thing, this is moral, ठीक है, नाउन और वर्ब का फर्क है। देखिए, आप इस कॉलेज के बारे में कुछ सोचते होंगे, एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, नॉट सो गुड, जो भी, वो आपका अपना परसेप्शन है। किसी का परसेप्शन किसी मैटर पे कुछ होगा, किसी एक फैकल्टी के बारे में a bunch of students will think कि they are not good, एक फैकल्टी के बारे में bunch of students बोलेंगे कि they are good, अपना अपना परसेप्शन है। उसी तरीके से कोई एम्प्लॉय भी जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी एक परसेप्शन बनाता है, और उससे ये डिपेंड होता है उसकी साइकोलॉजी में कि वो कितना सेटिस्फाइड है और कितना नहीं सेटिस्फाइड है,
his job satisfaction, his morale. His morale is the sum total or comprehensive of what he thinks of that organization and the work culture of that place. Social security एक ऐसी चीज है, एक ऐसा स्कीम है जो उनके मोरल को इम्प्रूव करता है, यानी उनको फील गुड फैक्टर जिसको कह सकते हैं कि उनको अच्छा फील होता है कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, टिक के रहेंगे एंड दे आर विलिंग टू वर्क. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. नो नो, आप बता के कैसे. Similarly, morale is the sum total of what you think of the organization. ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव, एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आप क्या सोचते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, दैट इज नोन एज मोरल. और अगर आपको फैसिलिटेट किया जाएगा, सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी, तो क्या आपको अच्छा फील होगा या नहीं होगा? होगा. इससे आपका सेटिस्फैक्शन भी बढ़ेगा, राइट? हाँ. नेक्स्ट पॉइंट, टू अनहाइजीनिक वर्क. देखो, ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ हजार्डस काम नहीं होता, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ खतरनाक काम होता है, बहुत सारा गंदा काम भी होता है, अनहाइजीनिक, जैसे वेस्ट इफ्लुएंट प्लांट के बारे में. यहाँ बाहर क्लास इज गोइंग, आप प्लीज क्लास खत्म होने वाली है 5 मिनट. ठीक है, अनहाइजीनिक वर्क. अनहाइजीनिक वर्क का क्या मतलब हुआ? जैसे वेस्ट इफ्लुएंट प्लांट, फैक्ट्री में जो वेस्ट आता है, आप सुने हैं वेस्ट को सीधा डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता है कभी, वो बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल पोल्यूशन और बायोसिस्टम को खराब करता है. जैसे हम बताते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी में जो स्किन रिलेटेड करती है ना, स्किन वाली जो जितनी ऑइंटमेंट बनता है, स्किन में ऐसे ब्यूटी का क्रीम्स नहीं, एक्जिमा इस तरीके का जो स्किन का जो क्रीम होता है, हर में लगभग सल्फर आपको कॉमन मिलेगा. ठीक है, सल्फर आपको कॉमन मिलेगा. वो सल्फर जिस एरिया में काम होता है, आप वहाँ नहीं मिल पाएंगे, इतना स्मेल आता है, बहुत मुश्किल होता है वैसे जगह पे रहना, वैसे जगह पे काम करना. और ऐसी हजारों चीजें हैं ऑर्गेनाइजेशन में जिससे आपको थोड़ी दिक्कत सी महसूस होती. और वेस्ट इफ्लुएंट प्लांट में काम करना इतना अनहाइजीनिक होता है कि समटाइम्स यू फील लाइक कि कहा जाता है, देखो ये कहीं रिटन नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि to do the part of your senses, sometimes a part of your senses by drinking or something to clean those areas. इतना ज्यादा अनहाइजीनिक होता है और उसमें खतरा भी होता है, बीमारी हो जाने का भी बहुत खतरा होता है. आप समझ सकते हैं. तो वैसे कंडीशंस में अनहाइजीनिक वर्क में काम करने के लिए एक एनकरेजमेंट सोशल सिक्योरिटी भी होता है, राइट? नेक्स्ट, लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म. एक बात बताइए, आंसर कीजिए क्वेश्चन. इफ आपका 11 से 12 पेरोल का क्लास होता है, पाटलिपुत्र में मेरा 4 क्लास होता है. अब ये बताइए कि अगर हम यहाँ से 3 दिन के लिए एब्सेंट हो जाए, केस 1, if I get absent for 3 days without telling anybody here, without informing the authorities, कि हम एब्सेंट होंगे, केस 1. सेकेंड केस, अगर हम ये लीव अप्रूव करवा लें कि ठीक है, आई एम गोइंग ऑन अ वेकेशन फॉर 3 days, दोनों में से, सवाल सुनिए ध्यान से, दोनों में से किस केस में हम एब्सेंट कहलाएंगे? क्या दोनों केस में एब्सेंट कहलाएंगे या आपका कोई अलग आंसर है इसको लेकर? केस 1, I did not get my leaves approved, nor did I inform anybody here that I am going to go on a leave. और 3 दिन हम नहीं आए कॉलेज. ठीक है. The second thing कि अगर सेकेंड थिंग है कि हम यहाँ लीव साइन करवा लें अपना 3 दिन के लिए और तब हम नहीं आए, वेकेशन पे चले जाए, क्या हम दोनों केस में एब्सेंट कहलाएंगे
कोई ऐसा है जो कहता, किसी का हैंड रेज करो जो लोग ये कहते हैं कि फर्स्ट प्लेस में हम एब्सेंट कहलाएंगे और सेकंड में नहीं। पहले हैंड रेज करो, देखना चाहते हैं हम कितना परसेप्शन है तुम्हारा इस बार कि फर्स्ट केस में हम एब्सेंट कहलाएंगे और दोनों में नहीं। कितने लोग हैं जो हैंड रेज कीजिए कि दोनों में एब्सेंट हो जाएंगे। और नन ऑफ दीज में कौन कौन है? वही बात। In the first case, see, in the first case, I will be called absent. And in the second case, I will not be called absent. आप स्कूल वाला समझ गए जो मैम रजिस्टर लेके आती थी, प्रेजेंट मैम, एब्सेंट मैम, वो नहीं। एचआर के टर्म्स में अनअनाउंस्ड लीविंग द वर्क, मैंने बताया नहीं तो यहाँ क्योस हो जाएगा। ठीक है, 11 बजे के टाइम पे आप बोलने लगेंगे कि शिल्पा मैम का क्लास है, मैम नहीं है क्लास में, 15-20 मिनट लेट हो गया। उसके बाद मैनेजमेंट को भी ये पता नहीं है कि दूसरे के टीचर का सब्स्टिट्यूट क्लास लगाएं कि नहीं लगाएं, आएंगी कि नहीं आएंगी, कोई कंफर्मेशन नहीं है। क्लास में हंगामा होना शुरू हो गया, मैनेजमेंट परेशान। आई एम नॉट टेलिंग एनीबडी कि हम आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन दूसरे केस में अगर हम लीव अप्रूव करवा लेते हैं तो मेरा सब्स्टिट्यूट लग सकता है। उस सब्स्टिट्यूट के लिए भी देखा जाना होता है कि इस समय कौन सा टीचर खाली है। ऐसे इतना इट्स नॉट दैट सिंपल कि कोई भी टीचर सब्स्टिट्यूट ले ले, है ना। यही कहलाता है इंडस्ट्रियल एब्सेंटिज्म। अब हम तो बस एक सेंस में समझा दिए, ऐसा कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं आ जाएगा अगर ऐसा होगा। लेकिन अगर 10 वर्कर एक साथ एब्सेंट हो गए तो आप समझिए कि वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन लाइन पे है, रुक जाएगा। कितनों का नुकसान हो जाएगा? सबका नहीं। अगर तुम ये बोलो कि कितने पैसे का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जब आप काम करते हैं आप टीम में काम करते हैं। हर वर्कर हर काम नहीं कर सकता है, स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क होता है इंडस्ट्री में। ठीक है, तो मास एब्सेंटिज्म को अगर बहुत गिरवांस रहेगा, डिससैटिस्फैक्शन रहेगा तो क्या होगा? यही होगा ना कि लोग एब्सेंट होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि उनकी चाहत ही नहीं होगी काम पे जाने की। ठीक है, नाउ यू टेल मी व्हाट इज लेबर टर्नओवर। इंडस्ट्रियल से एग्जिट पॉलिसी पढ़ाए थे ना हम ही बताए थे ना नेहा मैम के सब्स्टिट्यूट क्लास में एग्जिट पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़े है ना, लेकिन आप लोग लेबर टर्नओवर तो पढ़े ही होंगे, बताइए। लेबर टर्नओवर क्या होता है? The number of laborers leaving an organization in a particular period of time. इतने लेबर ने काम छोड़ दिया in a particular period of time, उसको कहते हैं लेबर टर्नओवर। जब आप लेबर टर्नओवर डिफाइन करेंगे हमेशा उसका टाइम मेंशन करेंगे, इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे हम अगर ये पूछें कि इस ऑर्गेनाइजेशन का, ये इस इंडस्ट्री का लेबर टर्नओवर 5 साल का क्या है, तब आपको टाइम डिफाइन करके बताना होगा। ऑर्गेनाइजेशन से काम छोड़ के जाते हैं ना लोग, उसी को कहते हैं लेबर टर्नओवर। आईटी में ये बहुत ज्यादा है और बहुत परेशान रहते हैं एचआर मैनेजर्स वहां पर उनको रिटेन करने में। बेनिफिट्स पढ़ाए थे ना, बेनिफिट्स पढ़े थे आप लोग। बेनिफिट्स का एक मेन पर्पस ही यही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स को रिटेन करके रखना, या बड़े पोस्ट पे भी या जो भी। तो लेबर टर्नओवर को भी रोक के रखने में, क्योंकि हम बताए ना आपको भी, जैसे ग्रेजुटी है 4 साल हो गया तो क्या वो रिटेन करने का तो पैसा देते हैं ना, फिर अलग से चार्ज करते हैं, लेकिन सबको वैसे रिटेन कर पाना तो पॉसिबल नहीं है ना। पैसा देने का भी तो एक लिमिट होता है। और हर कोई, मान लो तुम किसी प्राइवेट इंडस्ट्री में भी, एनएचआर won't give you 1 rupee extra without a purpose। जब आप काम करेंगे तब आपको पता लगेगा। तो ऐसे नहीं दिया जा सकता है कि तभी तो बेनिफिट दिया जाता है कि सैलरी उस तरह नहीं बढ़ाई जा सकती है। तो लेबर टर्नओवर को रोक के रखने में, लेबर टर्नओवर को रोक करके रखने में सोशल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। अब ग्रेजुएटी का 5 साल में आपको पैसा मिलेगा, चौथे साल में आप थोड़ी ना सोचेंगे कि अब हम छोड़ देते हैं। आपको लगेगा ही कि सारा पैसा लेने हैं 5 साल के बाद।
लेबर टर्नओवर बचता है। ओके, तो आज का क्लास यहीं तक रखो और